X plus 5 minus x minus 2x square in the form a minus b x plus c whole square and hence or otherwise find its maximum value and the value of x at which it occurs. Okay, हमने सीखा था कि इनको जो है इन क्वेश्चंस को जो है वो कंपैरिजन से करते हैं, तो मैं लिख देता हूँ पहले दूसरी साइड पे and hence or otherwise find its maximum point लिखा हुआ है. हमने कंपैरिजन किस तरह करना सीखा था. हम कहते थे कि भाई इस साइड को एक्सपैंड करते हैं और फिर टर्म्स को जो है वो हम कंपेयर करेंगे. सही है. इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर लेता हूँ यहाँ पे ताकि मैं दूसरी साइड पे भी रीअरेंज कर सकूँ. सो माइनस बी एक्स स्क्वायर माइनस 2bcx plus a minus bc square. Okay, I have minus 2x square minus x plus 5 on this side and the other things on the other side. Okay, अब मैं कंपैरिजन करूंगा x वाली टर्म को x वाली टर्म से. व्हाट डू आई गेट? माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस b. तो b की वैल्यू कितनी हो गई? b की वैल्यू हो गई 2. Thursday, Waleed, you have a double period. It's going to be in one period and the other period is going to be the lecture. Okay. Sorry. Minus 1 equals to minus 2bc. मैंने x वाली टर्म को कंपेयर किया कोएफिशिएंट्स ऑन बोथ साइड्स. ये उस दिन भी हम कर रहे थे. किसी को यहाँ तक प्रॉब्लम तो नहीं है? Okay, then constant and constants. कैलकुलेशन सही किया ना? ओके, तो ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया 41/8 माइनस b x plus 1/4 whole square. उसने कहा hence or otherwise find its maximum value and the value of x for which it occurs. सही है. तो हमने सीखा था कि भाई इसके बाहर जो होता है वो जब x कोऑर्डिनेट निकालना होता है of the turning point. When I'm asking you the maximum value, I'm basically asking you the turning point. तो turning point निकालने के लिए क्या करना पड़ता है कि x कोऑर्डिनेट of the turning point के लिए when you equate the bracket to 0. So मैंने कहा कि turning point जो है कैसे निकलेगा? x plus 1/4 equals to 0, x equals to minus 1/4. फिर मैंने कहा था the term being added or subtracted outside the bracket is the y coordinate of the turning point. सही है. तो y coordinate of the turning point क्या हो जाएगा? 41/8. So the maximum value is 41/8. Corresponding value of x is minus 1/4. Now we're going on to quadratic inequalities. सही है. अब equals to की साइन नहीं है, greater than equals to की है, आगे less than की साइन होगी. सही है. फिर कुछ और साइन होगी. We'll look at that. सही है. अब quadratic inequality आप लोगों ने हो सकता है अलग अलग तरीकों से सीख. मैं आपको एक सेट स्टेप्स बता रहा हूँ and then I'll tell you the significance of those steps. पहले हम सॉल्व करना सीख लेते हैं, फिर हम उसकी जो है वो डिटेल सीखेंगे कि भाई क्यों कर रहे हैं वैसे. मैं क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के स्टेप्स आपको बता रहा हूँ. आप प्लीज साथ साथ लिख लें and make sure that you follow the steps rather than trying to skip them, because it makes it complicated when you guys have done the solution in a weird way and then you somehow end up getting the right answer for whatever reason. Okay, मेथड के मार्क्स होते हैं वो आपको
मेथड के मार्क्स सारे अवेल करने हैं. Okay. Bring all terms on one side such that x square is positive. सही है. तो इसमें हुआ हुआ है सब एक साइड पे आ गया रहेगा x square minus 3x minus 4 is greater than or equals to 0. Okay. Okay. Change the inequality into an equation and solve. Okay. अब इसको बहुत मेहनत से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपने कैलकुलेटर पे नंबर डाल देने, ये हो जाएगा. सही. x की दो वैल्यूज आ गई 4 एंड -1. सही. Sketch the curve. अच्छा मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा. Sketch the curve with x-intercepts only and shade the required region. Then state your shaded region as an inequality. सही है. तो अब मैं इसको करता हूँ. अब मैंने ये बना लिया. मुझे पता है कि कर्व जो होगा वो -1 और 4 से गुजरेगा. सही. और ये ऐसे कर्व बन जाएगा. I don't know it's turning. I don't mind that. सही है. मुझे सिर्फ x इंटरसेप्ट से कर्व बनाना था तो मैंने बना लिया. अब जो है मैं इसको शेडिंग की डिसाइड करता हूँ. सही है. अब शेडिंग के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि शेडिंग कैसे डिसाइड करते हैं. सही. If your inequality sign is greater than or equals to 0, then shade the region above. This is the x-axis, okay? This is the x-axis. Above the x-axis, but below the curve. सही. इसका मतलब क्या है कि आप कौन सा रीजन शेड करेंगे. आप ये वाला रीजन शेड करेंगे that's above the x-axis but below the curve. Okay, above the x-axis but below the curve. बाहर वाला रीजन शेड करेंगे जब greater than or equals to की साइन है. सही है. इस रीजन को स्टेट कैसे करेंगे. अब ये देखें आप कौन सी वैल्यूज x की बात कर रहे हैं. -1 से पीछे जाने वाली वैल्यूज ना. तो आप इसका आंसर क्या देंगे. x is less than or equals to, because यहाँ पे equals to भी था, less than or equals to -1 or x is greater than or equals to 4. सही है. फिर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि if your inequality sign is less than, मैं इसको greater than कर देता हूँ, less than 0, then shade equals to से फर्क नहीं पड़ता. आंसर में बस फर्क पड़ता है कि आंसर में लिखना है below the x-axis and above the curve. सही है. पहले आप सीख लें कि ये किस तरह कर रहा हूँ मैं आपको बता भी देता हूँ कि क्यों कर रहा हूँ मैं. पहले हम सीख लेते हैं कि किस तरह करता है. सही है.
तो पहले हमने सीखा कि एक साइड पे ले आए सबको such that x square becomes positive. Then you solve the inequality, solve the equation, you convert it into an equation and solve. And then in the third step, you sketch a curve and shade the region that is required. इस रीजन को जो है वो आपने एक इनइक्वालिटी में कन्वर्ट कर लेना कि ये रीजन इस तरह और ये रीजन इस तरह है. ये जो सेकंड वाला है अभी मैं इसको आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में करके दिखाऊंगा. पहले एवरीबॉडी शुड गेट कंफर्टेबल विद द फर्स्ट वन. सही है. ये क्यों क्या है ऐसे वो भी मैं आपको बताऊंगा बट इन अ बिट. ओके. Find the range of values of x for which x square plus 2 is less than 3x. हमने steps क्या सीखे थे? हमने steps सीखे थे कि भाई bring everything on one side such that x square is positive. So I brought everything on one side. Step number 2 था कि भाई convert it into an equation and solve. So I convert it into an equation, then I solve. सही है. तो ये हो जाएगा x equals to 2 and x equals to 1. सही है. Third था sketch and give me an answer, right? So 1 and 2 और मैंने ये sketch बना दिया. अब ये inequality क्या है? Now I understand that this inequality is now less than 0. The one that I was solving is less than 0. If your inequality sign is less than 0, then shade the region below the x-axis and above the curve. तो आप कौन सा वाला region shade करेंगे? That is below the x-axis. So I shade this region. Okay. Is everybody clear on this? So I shade this region. अब मैं आंसर क्या दूंगा? मैं कहूँगा 1 और 2 के अब कौन सी x की वैल्यूज की बात हो रही है? The values of x between 1 and 2. So I'm going to say that x is between 1 and 2. X is greater than 1 but less than 2. ये x axis है. Let's talk about कि भाई क्यों करना है ऐसा. सही है. अच्छा किसी को पता है क्यों करना है? Those of you who've done hard math, hard math में भी ऐसे ही करते थे. शायद इतने स्टेप्स ना किए हो बट करते थे ऐसे ही थे. वो y की वैल्यूज को होता है. हाँ बिलाल कुछ कह रहे. बिलाल क्या कह रहे हो? y की वैल्यूज. y की वैल्यूज बढ़ रही हैं तो उस साइड से हम देखते हैं. जैसे ग्रेटर देन 0 तो जहाँ से y की वैल्यूज बढ़ रही हैं कोऑर्डिनेट्स पे वो देखते हैं. सही है. Absolutely right. It has something to do with y values and I'll tell you what it has to do with y values. देखिए जब मैं अभी आपने पिछले में पढ़ा ना कि हर कर्व का नाम जो होता था वो y होता था. हमने शुरू में ये लिखा था ना कि y equals to something. सही. हर कर्व का नाम जो है वो हमने y लिखा था ना. So कर्व को जो है वो y कहते हैं. So can I tell you that if you calling this a quadratic curve, it must have the name y. सही है. And what am I asking you? When is y greater than 0? When is y greater than or equals to 0? तो मैंने ये सोचा कि भाई अगर मैं अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में सोचूं तो ये x एक्सिस होती है, ये y एक्सिस होती है. y कब ग्रेटर देन 0 होता है? जब वो x एक्सिस के ऊपर होता है. सही है. y कब ग्रेटर देन 0 होता है? जब वो x एक्सिस के ऊपर होता है. और y कब लेस देन 0 होता है? जब वो x एक्सिस के नीचे होता है. तो इसलिए जब ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 की बात आई तो मैंने कहा कि आपका कर्व कब ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होगा? जब वो x एक्सिस के ऊपर होगा. सही है. ये वाला पोर्शन. अब इस पोर्शन पे कौन सी रेलेवेंट है? ये वाली वैल्यूज रेलेवेंट है कि अगर आप ये वाली x की वैल्यूज लेंगे तो आपके जो y कोऑर्डिनेट है वो ग्रेटर देन 0 आया करेगा. सही है. If you take these values of x, your y will be greater than 0 and that is what I asked you. कि बताएं भाई जी आपका कर्व कब greater than 0? When I talk about the curve, I'm talking about the values of y. If I ask you when is this curve less than 0, यानी I'm asking you when are the values of y less than 0. So आप क्या बताएंगे कि ये वाला पोर्शन जो below the x axis होता है इसमें कौन सी values of x relevant है? ये वाली, यानी -1 और 2 के बीच में जब आप x को लेंगे तो जो है वो y कोऑर्डिनेट लेस देन 0 आ रहा होगा. इसीलिए मैंने इनको लेबल किया हुआ है कि ये x एक्सिस है. सही है.
इसके नीचे जो होता है वो y लेस देन 0 होता है। आप ट्राई भी करके देख लें, आप यहाँ पे 1.5 लगा के देखें y की वैल्यू क्या आती है। मेरे हिसाब से नेगेटिव आनी चाहिए, सही है, आएगी भी -0.25 समथिंग आ रही है। Okay, so what I'm essentially talking about is I'm asking you the values of x for which y will be negative when I'm solving quadratic inequalities. Does that make sense to everybody now? You understand why I shaded below the x-axis and above the x-axis? मैंने सिर्फ रट्टा नहीं लगवाया, मैंने अब आपको लॉजिक भी बता दिया कि भाई होता है इसलिए। Okay? पहला स्टेप क्या होता था? टेक एवरीथिंग टू वन साइड सो दैट x square becomes positive. अच्छा, अब मुझे बताओ इनइक्वालिटी का साइन फ्लिप कर देंगे और सारी वैल्यूज सही है, साइन चले जाएंगे। ये क्लियर है सबको? मैं सबको दूसरी साइड पे ले गया। अब मैं कौन सी इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहा हूँ? मैं बेसिकली आई एम सॉल्विंग फॉर लेस देन 0, तो मैं शेडिंग कहाँ करूंगा? बिलो द एक्स एक्सिस। ओके, जब मैं कर्व बनाऊंगा तो मैं शेडिंग इसी तरीके से करूंगा जो मैंने अभी की हुई है। क्यों? क्योंकि मैंने जो है जिस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है वो ये वाली इनइक्वालिटी है, इसका मैंने चेंज कर दिया फॉर्म। ओके, और उसकी वजह ये होती है कि भाई मैंने इस तरह इसलिए सिखाया है क्योंकि कर्व आप फिर अपने हमेशा जो है वो इनइक्वालिटीज के अंदर इस तरह बना रहे होंगे। कर्व कभी भी आपने अब उस तरह नहीं बनाना। ओके, ओके, इज एवरीबॉडी क्लियर ऑन दिस? ये करके दिखाएं। कैन यू कंप्लीट दिस क्वेश्चन फॉर मी? सही है, सबका आंसर आ गया। इस तरह बन रहा है, आपने पहले इक्वेशन बना ली होगी, एक -2 एक 3 आ रहा है, यूं करके कर्व बन रहा है, एंड देन यू स्टार्ट शेडिंग. So you shade below the x-axis because it is less than 0. So what values of x have I shaded? I shaded the values of x that are greater than -2 but less than 3. Okay, I would always encourage you to draw this graph and then give me a final answer so that you don't end up making a mistake. Sometimes you will also see the shading done on your marking schemes because the examiner sort of tends to follow away. If you draw this graph and then shade it properly, you are more likely to get full marks. And not, you can also get full marks without it as well. It doesn't matter, but the idea is कि आपने जो है वो अपना method पूरा करना है just to avoid silly mistakes. Okay, now this one is just there to emphasize an idea कि भाई कभी कभार आपके पास डायरेक्ट फैक्टराइज फॉर्म भी आ सकती है, तो अब आपने इसको ओपन करके वो पूरी कहानी नहीं करनी है। आपने सिर्फ ये कह देना है कि x + 5 = 0 और 2x + 1 = 0. सो x की एक वैल्यू -5 आ जाएगी और x की वैल्यू एक -½ आ जाएगी। फिर आप ग्राफ बना दें अपना, -5 पहले, सॉरी -5 पहले, फिर -½ फिर मैं इसको यूं कर दूंगा। अब फिर से कौन से शेड करना है? I am trying to shade something that is less than 0, so I'm still shading inside. So I get x is greater than or equals to -5, but less than or equals to -½ Okay. Now the next thing on this topic is nature of roots. It says work out whether each of these quadratic equations has two distinct roots, equal roots, or no real roots. So yeah, we'll talk about what the question is saying. But what I want to do in this question is I want to solve each of these questions with the quadratic formula. So yeah, और मैं पूरा आपको quadratic formula करके दिखाऊंगा. Let's look at that. मैं तीनों को side by side solve करूंगा, and I'll show you something that's going on in this question. Okay. So A is 1, B is -3, C is 5. मैंने कहा -b plus minus b square. I'm just doing this to show you a particular idea.
Okay. Something. सर Okay. इसमें तो नो रियल रूट्स आ गए, अंडर रूट में माइनस आ गया। सही है, नो सॉल्यूशंस है फिलहाल, अभी मैं रूट्स की बात करता हूँ। सही है, विल टॉक अबाउट द रूट्स। तो पार्ट बी में मैं कैसे पार्ट बी में सॉल्व करते हैं। माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर minus 4ac over 2a. So I get minus 1 plus minus 1 plus 24 into 3 is 4872. ओके, कोई मुझे इसके दो आंसर बता देगा? अच्छा बल्कि छोड़ो, दो आंसर आ रहे हैं। सही है, और मैं इसको भी सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये हो गया -20 प्लस माइनस रूट ऑफ 0 ओवर 50। तो एक ही हो गया -20 ओवर 50 प्लस 0 ओवर 50 और -20 माइनस 0 ओवर 50, दोनों -20 ओवर 50 बनते हैं। सही है। अब मुझे बताओ कि ये इस वाले में 2 सॉल्यूशंस आए और 1 सॉल्यूशन आया। ये सारा किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? डू यू सी व्हाट इट्स डिपेंडेंट ऑन? एक्स एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है अगर? वो तो तुम्हारे रिजल्ट आ रहा है ना, कि तुम कह रहे हो अभी मैं एक्स एक्सिस की बात भी नहीं किया। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन, मैं सिर्फ अभी अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन की बात कर रहा हूँ कि भाई अभी मैं अंडर रूट बनाऊंगा पे, फिर अंडर रूट के अंदर क्या है। सही है, अंडर रूट के अंदर क्या है? हमने देखा कि अंडर रूट के अंदर अगर 0 आता है तो डिस्क्रिमिनेंट तो वाला हो गया, एक ही सॉल्यूशन हो जाएगा। एब्सोल्युटली, आई एम कमिंग टू द डिस्क्रिमिनेंट। अंडर रूट के अंदर अगर पॉजिटिव नंबर आता है तो 2 आंसर आ जाते हैं। अगर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आता है तो कोई आंसर नहीं आते। अंडर रूट के अंदर होता क्या था, हमने पढ़ा है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता था बी स्क्वायर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। सही है, तो ये सारा का सारा डिपेंडेंट है बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पे। व्हेन बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, यानी नेगेटिव नंबर है, तो no we real have root। no solutions. Absolutely. सही है, b square minus 4ac जब greater than 0 है तो two solutions, and when b square minus 4ac is equals to 0, I have one solution. ये सबको समझ आया? ये आपने एड मैथ में भी जिन्होंने पढ़ा हुआ है उन्होंने देखा होगा, लेकिन उसका लॉजिक ये होता है कि भाई b square minus 4ac आता कहाँ से? It's from the under root. Okay. Now let me write this as a एज नोट्स। मैं नेक्स्ट पेज के ऊपर आप देख लें कि नेचर ऑफ रूट्स आपको समझ आ गया ना कि कैसे डिटरमिन होती है और किस पे डिपेंडेंट होती है। अब मैं आपको इसकी वो पूरी लिखवा देता हूँ कि जिसमें आपने नोट करना है कि मैं क्या क्या लिख रहा हूँ। नेचर ऑफ रूट्स, मैंने आपसे कहा कि नेचर ऑफ रूट्स, सही। अच्छा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड व्हाट? इट्स कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट। When b square minus 4ac is greater than 0, we have two distinct and real roots. सही है। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? डिस्टिंक्ट का मतलब जी वली कॉपी कर लो अगर करना है तो। मैं पहले नीचे वाला लिख लूँ फिर उसको ऊपर वाले को कॉपी कर लेना। सही है, दैट्स द प्रूफ। नीचे वाला पहले लेक्चर है, फिर मैं प्रूफ दिखा देता हूँ। ओके, we have two distinct and real roots. Distinct का मतलब होता है different। सही है, so we have two different real roots. इस केस में ग्राफ अगर मैं बनाऊं तो ग्राफ कैसे बनेंगे? x एक्सिस ये बनी हुई
तो आपके ग्राफ्स जो होंगे वो या तो यूं बन रहे होंगे, 2 दफा इंटरसेक्शन हो रहा है, या फिर यूं बन रहे होंगे, 2 दफा फिर से इंटरसेक्शन हो रहा है। सही है। हम कहते हैं कि when b square minus 4ac is equals to 0, we have one real root, or we can also say we have equal roots or repeated roots. सही है, कोई भी टर्म यूज कर सकता हूँ। जब ऐसी सिचुएशन होती है तो कर्व कैसे बनेगा, दैट्स द मोर इम्पोर्टेंट पार्ट। कि आप देखें कि अब कर्व की बात क्या है कि द कर्व विल नॉट एक्चुअली, सिंस देयर इज ओनली वन रूट, द कर्व इज गोइंग टू कम एंड गो अप लाइक दैट। इट्स गोइंग टू बी अ टेंजेंट टू द एक्स एक्सिस। सही है, टेंजेंट टू द एक्स एक्सिस है, टेंजेंट टू द एक्स एक्सिस। सही है, दैट इज व्हेन यू हैव that is when you have one real root. So yeah, b square minus 4ac is less than 0. There are no real roots. There are no real roots, or we can also say that there are imaginary roots. सही है, बाद में बात करेंगे imaginary roots क्या होते हैं, that's something for later on, not right now. We'll talk about those later on. इस केस में क्या होगा कि the graph will not cut the x-axis. हमने शुरू में जाके पढ़ा था, if I show you the first few slides of this topic, एक मिनट, कि हम जो है ये x के जो सॉल्यूशंस होते हैं इनके 3 नाम पढ़े थे ना, कि दे आर कॉल्ड रूट्स, x इंटरसेप्ट्स, सॉल्यूशंस और जीरोस। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि since there are no solutions, there are also no x-intercepts, therefore the curve lies entirely above the x-axis or entirely below the x-axis, and these are important things. Question जो है वो कोई भी terminology use कर सकता है। सही है। Fourth category, there's a fourth category, मैं उसकी भी बात कर लेता हूँ। There's a fourth category that says कि when b square minus 4ac is greater than or equals to 0, यानी इन दोनों को अगर कंबाइन कर दिया जाए, पहले वाले को और तीसरे वाले को, सॉरी पहले वाले को और दूसरे वाले को, सही है, तो हम कह सकते हैं वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बनता है। इस केस में मैं सिर्फ क्या कह सकता हूँ कि वी नो दैट देयर आर रियल रूट्स, बट वी डोंट नो whether there are 2 or 1, whether there are 2 or 1. Okay, find the values of p for which the quadratic equation this has equal roots. Equal roots से मुझे फौरन से क्या ख्याल आना चाहिए, equal roots कब होते हैं? What's wrong with this? It just scrolls so fast. इक्वल रूट से मुझे क्या ख्याल आना चाहिए कि b स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो इक्वल्स टू 0 है। सही है, सो आई एम गोइंग टू से कि this means b square minus 4ac is equals to 0. Now it's important that you understand how to extract a, b and c from this equation. सही है, हम कहेंगे कि a is 1, b is 2 plus p and c is 13 minus p. Okay, b square minus 4ac equals to 0. So 2 plus p whole square a c equals to 0. 4 plus 4p plus p square minus 52 plus 4p equals to 0. p square plus 8p minus 48 equals to 0. Okay,
देन आई सॉल्व दिस, सही है। इसमें फिर से ABC लगा देते हैं, 1 B8। अब मैं P के लिए सवाल कर रहा हूँ ना, सो वट एवर माई आंसर्स आर फॉर P, -8 प्लस माइनस, ये मुझे शो करना ज़रूरी होता है कि भाई मैं एक दफ़ा फार्मूला में इंसर्ट करके दिखा दूँ, एंड देन आई कैन प्रॉब्ली यूज अ कैलकुलेटर, बट आई हैव टू शो यू दिस फार्मूला, एंड देन आई कैन से दैट P के 2 आंसर्स आ रहे हैं, P का एक आंसर आ रहा है -12 और P का एक आंसर आ रहा है 4, सही है। अब यहाँ पे एक छोटी सी कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। कुछ लोग जो है वो परेशान होते हैं कि सर अभी तो आपने कहा इक्वल रूट्स यानी एक आंसर आना चाहिए था, आपके 2 आ गए, ऐसा लगता है किसी को? कोई बताएगा मैंने क्या गलत बात की अभी? सही, ये तो पी के आंसर है ना। एब्सोल्युटली, ये P के आंसर्स हैं, यानी आप इनके P के आंसर्स को अगर आप यहाँ पे यूज करें तो X का जो होगा वो एक आंसर आ रहा होगा। मैं छोटी सी आपको एक वर्किंग करके दिखाता हूँ, it's going to get erased because I'm doing it with this pen, but that's what I want to show you, इसलिए मैं पूरी complete working नहीं करना चाह रहा, this is lagging। ये बनेगा 6x, make it 6, let me just do it with a normal pen and then it's going to get erased। I don't know, there's some problem with my iPad today। ओके, एक्स स्क्वायर, अगर मैं आपको सिर्फ ये वेरीफाई करके दिखा रहा हूँ कि जब एक्स की वैल्यू P की वैल्यू 4 लगाएंगे तो क्या होता है, सही है। मैं सिर्फ आपको ये दिखा रहा हूँ कि भाई उसका एक आंसर आ जाएगा, ये देखें। अब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो आपके पास आएगा x इक्वल्स टू -3, x इक्वल्स टू -3। You see that you got one solution for x and that's what the question was talking about कि भाई जी x के जो है वो इक्वल रूट्स आने चाहिए, तो x के जो है वो आ गए। ये आपको मुझे एग्जाम में शो करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए दिखा रहा था कि ये वो वैल्यूज ऑफ P हैं जिनसे x के जो है वो इक्वल रूट्स आएंगे। Is everybody clear? Understand this? I have this question now. सही है? This is qx square minus 2 q plus 3 plus q minus 1 has 2 different real roots. सही है? तो मैंने कहा कि 2 different real roots का क्या मतलब है? b square minus 4ac is greater than 0. Do you all understand this? पहले मैं a b c पुल आउट कर लेता हूँ, मुझे बताओ a क्या आ जाएगा? a is q, b is -2 q plus 3 and c is q minus 1. Okay, b square minus 4ac should be greater than 0. -2 q plus 3 whole square minus 4q 4ac, sorry, it's greater than 0. इसको एक फिर से एक्सपैंड करेंगे, -2 पे स्क्वायर लगेगा तो ये 4 हो जाएगा, q plus 3 पे अलग से स्क्वायर लग जाएगा। यहाँ पे क्या बन रहा है? -4q square plus 4q। Everybody understands this? फिर मैं ब्रैकेट के अंदर एक्सपैंड करूंगा, q square plus 6q plus 9 minus 4q square plus 4q, 4q square plus 24q plus 36 minus 4q square plus 4q, सही है? (28q) is greater than -36. Q is greater than -36 over 28. Q is greater than -9 over 7. सही है? What is the range of values of Q? तो मैंने आपको एक ऐसी रेंज बता दी values of Q कि भाई Q को आप जो है वो अगर -9 over 7 से बड़ा कोई भी नंबर ले लें आप, कि -9 over 7 से बड़ा कोई भी नंबर आप ले लें और यहाँ पे आप रख दें, तो जो X के सॉल्यूशंस आएंगे वो 2 रियल और डिस्टिंक्ट आ रहे होंगे।
सही है। फिर ये वाला देखते हैं, फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ k for which the equation k square plus 3x plus k equals to 2kx plus 5 has no real roots. तो पहला काम आपको क्या करना चाहिए, नो रियल रूट्स की बात कर रहा हूँ तो मैं बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो इक्वल्स लेस देन 0 होना चाहिए. ओके, अब because this equation is broken up into two parts, what I'm going to do is I'm going to drag everything to one side and then try to figure out what my a, b and c are. तो मैं इसको लेकर आता हूँ यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे भी ले जाऊंगा, कोई मसला नहीं है. That I want my x square to be positive on most time, in most cases. So that's what I'm going to do. A is k, b सब देख लें और से सबको समझ आता है. तो ये b is 3 minus 2k and c is k minus 5. Okay, so b square minus 4ac is less than 0. सही है.